آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ڈرامے کی جس نے نشر ہونے سے پہلے ہی ناظرین کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور وہ ہے ڈرامہ ہراہی۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ہر سال درجنوں رومانوی کہانیاں سامنے آتی ہیں، مگر ہر کہانی اپنی پہچان بنانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ ہمراہی کو خاص کیا بناتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اور محبت کی داستان ہے، یا واقعی یہ رفاقت، اعتماد اور جذباتی وابستگی کی ایسی کہانی ہے جو ناظرین کے دل میں دیر تک جگہ بنا لے گی؟ سب سے پہلے عنوان پر غور کریں۔ ہمراہی کا مطلب ہے وہ شخص جو سفر میں ساتھ ہو، جو مشکل راستوں پر سہارا بنے، جو تنہائی میں آواز دے اور خاموشی میں بھی موجود رہے۔ یہ لفظ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ڈرامے کا مرکزی خیال صرف عشق نہیں بلکہ ساتھ نبھانے کی آزمائش ہے۔ محبت کے دعوے کرنا آسان ہوتے ہیں، مگر زندگی کے کٹھن مرحلوں میں کسی کا ساتھ دینا اصل امتحان ہوتا ہے۔ بظاہر اس کہانی کی بنیاد بھی اسی فلسفے پر رکھی گئی محسوس ہوتی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں دانش تیمور اور ہبہ بخاری۔ دونوں فنکار اپنی اپنی جگہ مضبوط شناخت رکھتے ہیں۔ دانش تیمور عموماً مضبوط، خود اعتماد اور بعض اوقات ضدی مزاج کرداروں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے کرداروں میں ایک شدت ہوتی ہے، ایک داخلی کشمکش ہوتی ہے جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری جانب ہبہ بخاری کی شخصیت میں نرمی، وقار اور جذباتی گہرائی دکھائی دیتی ہے۔ ان کا انداز ایسا ہے کہ وہ کمزور نظر آنے والے کردار کو بھی اندرونی طاقت کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ یہی امتزاج ہمراہی میں ایک دلچسپ توازن پیدا کر سکتا ہے۔ ہدایت کاری کی ذمہ داری بابر جاوید کے پاس ہے، جو بڑے پیمانے پر پیش کیے جانے والے ڈراموں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے کام میں بصری حسن، منظم مناظر اور جذباتی لمحات کو نمایاں انداز میں دکھانے کی صلاحیت شامل ہوتی ہے۔ کہانی قلم بند کی ہے زنجبیل عاصم شاہ نے، جو اپنے گہرے جذباتی اور تہدار مکالموں کے لیے معروف ہیں۔ جب ایک مضبوط ہدایت کار اور ایک حساس لکھاری اکٹھے ہوں تو توقعات خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ اب اگر ہم کہانی کے ممکنہ رخ کی بات کریں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ دو مختلف مزاج رکھنے والے افراد کی زندگی ایک موڑ پر آ کر آپس میں جڑتی ہے۔ ابتدا میں شاید انا، غلط فہمیاں اور سماجی دباؤ رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر حالات ایسے رخ اختیار کرتے ہیں جہاں انہیں ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمراہی کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے۔ کیا رشتہ صرف خوشی کے دنوں کا نام ہے، یا دکھ کے لمحوں میں بھی ساتھ دینا ضروری ہے؟ یہی سوال کہانی کا بنیادی تنازع بن سکتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں شادی، خاندان اور سماجی توقعات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اکثر محبت کی کہانیاں انہی دباؤ کے درمیان سانس لیتی ہیں۔ ہمراہی بھی غالباً اسی سماجی تناظر میں آگے بڑھے گا جہاں خاندان کی مرضی، عزت، مالی حیثیت اور روایت کرداروں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں گی۔ یہاں سے جذباتی ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور یہی ٹکراؤ ناظرین کو اسکرین سے جوڑے رکھتا ہے۔ دانش تیمور کے کردار میں امکان ہے کہ ایک مضبوط مگر اندر سے حساس شخص دکھایا جائے جو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہو۔ وہ محبت کرتا ہو مگر انا اسے اعتراف سے روکے رکھے۔ دوسری طرف ہبہ بخاری کا کردار شاید ابتدا میں نرم اور برداشت کرنے والا ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خودی کو پہچان لے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کہانی صرف رومانس نہیں رہے گی بلکہ کرداروں کی داخلی نشوونما کی داستان بھی بن جائے گی۔ ڈرامے کا ماحول غالباً جذباتی اور سنجیدہ ہوگا۔ موسیقی، پس منظر اور مناظر کی ترتیب میں ایک نرم مگر اداس کیفیت رکھی جائے گی جو کہانی کے موڈ کو مضبوط کرے۔ پاکستانی ناظرین ایسی کہانیوں سے جلد جڑ جاتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ قربانی اور آزمائش بھی شامل ہو۔ ہمراہی بھی اسی روایت کو آگے بڑھاتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور پہلو جس پر غور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ڈرامہ روایتی کہانی کے سانچے میں رہے گا یا اس میں کوئی غیر متوقع موڑ بھی شامل ہوں گے۔ اگر کہانی میں کرداروں کے فیصلے غیر معمولی ہوں، اگر انجام روایتی خوشگوار اختتام سے ہٹ کر ہو تو یہ ڈرامہ یادگار بن سکتا ہے۔ مگر اگر وہی پرانا انداز اختیار کیا گیا تو کامیابی صرف اداکاروں کی مقبولیت تک محدود رہ سکتی ہے۔ ابتدائی تاثر یہی ہے کہ ہمراہی ایک ایسی کہانی پیش کرے گا جو دل کو چھونے کی کوشش کرے گی۔ اس میں محبت ہوگی مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوگی۔ اس میں جذبات ہوں گے مگر ساتھ ہی خودی اور وقار کی بات بھی ہوگی۔ اصل کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ کیا ناظرین کرداروں کے درد اور خوشی کو اپنا درد اور خوشی سمجھ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ تھا حصہ اول، جہاں ہم نے ہمراہی کے پس منظر، مرکزی خیال، فنکاروں اور ممکنہ کہانی کے خدوخال پر تفصیل سے گفتگو کی۔ اگلے حصے میں ہم اس ڈرامے کی ممکنہ کہانی کو مرحلہ وار کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ابتدا سے انجام تک یہ سفر کس طرح طے ہو سکتا ہے، اور کن جذباتی موڑوں سے ناظرین کو گزرنا پڑ سکتا ہے۔
अब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ड्रामा हराही की मुमकिना कहानी के बाकायदा ढांचे और इसके अंदर छपे जज्बाती उतार चढ़ाव को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी रोमानवी ड्रामे की कामयाबी सिर्फ इसके मरकज़ी जोड़े पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि इस बात पर होती है कि कहानी किस तरतीब से खलती है, तनाज़ुर कैसे पैदा होता है और किरदार वक्त के साथ किस तरह बदलते हैं। कहानी का आगाज़ उमूमन एक सादा मगर परासर तारुफ से होता है। हमें दोनों मरकज़ी किरदारों की दुनिया दिखाई जाती है। एक तरफ ऐसा मर्द जो बज़ाहिर मजबूत, खुद एतिमाद और शायद कदरे सख्त मिजाज हो। वो अपनी ज़िंदगी के उसूलों पर सख्ती से कायम हो, उसे रिश्तों से ज़्यादा अपनी अना अजीज़ हो, या शायद माजी के किसी तजर्बे ने इसे जज्बाती तौर पर मोहतात बना दिया हो। दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जो बावकार, बाहिया और अंदरूनी तौर पर मजबूत हो मगर अपनी हसासियत को छुपा कर रखती हो। वो जज्बात को समझती हो, रिश्तों की नज़ाकत को जानती हो और शायद कुर्बानी देने की आदी हो। इब्तिदाई मुलाकात अक्सर किसी गैर मुतवक्के सूरत हाल में होती है। ये मुलाकात खुशगवार भी हो सकती है और तल्ख भी। मुमकिन है दोनों एक दूसरे को गलत समझ लें। यहाँ से अना का पहला टकराव पैदा होता है। यही वो मरहला होता है जहाँ नाज़रीन दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ ही कहानी को हरकत देता है। अगर सब कुछ आसान हो तो ड्रामा बेजान हो जाता है। फिर आता है दूसरा मरहला जहाँ हालात दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। यह क़ुर्बत इत्तिफाक से भी हो सकती है और मजबूरी से भी। शायद ख़ानदानी ताल्लुक़, शायद कारोबारी वाबस्तगी, या शायद किसी मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना। यहाँ से जज्बात की नरम लहरें पैदा होना शुरू होती हैं, मगर अना अब भी दरमियान में हायल रहती है। मर्द किरदार शायद अपने जज्बात को तस्लीम करने से इनकार करे, जबकि औरत किरदार अपनी खुदी को मजरूह नहीं होने देना चाहती। इस मरहले पर कहानी में ख़ानदान का किरदार अहम हो जाता है। पाकिस्तानी मुआशरे में रिश्ते सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं होते, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होते हैं। मुमकिन है लड़के का ख़ानदान किसी और रिश्ते का ख्वाहिश हो, या लड़की का ख़ानदान समाजी हैसियत के फ़र्क की वजह से हिचकिचाहट महसूस करे। यही समाजी दबाव कहानी में असल कशमकश पैदा करता है। मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का मामला नहीं रहती, बल्कि इज़्ज़त, रिवायत और तवक्कुआत का मसला बन जाती है। अगला मरहला उमूमन फ़ैसला किन होता है। या तो दोनों किरदार एक दूसरे को कबूल करने का फ़ैसला करते हैं, या हालात इन्हें एक रिश्ते में बांध देते हैं। अगर शादी हो जाती है तो कहानी का असल इम्तिहान तब शुरू होता है, क्योंकि शादी के बाद असल शख्सियत सामने आती है। अगर शादी नहीं होती और सिर्फ ताल्लुक़ कायम रहता है तो भी गलत फहमियाँ और फासले बढ़ सकते हैं। शादी के बाद की ज़िंदगी अक्सर ड्रामों में एक नई आजमाइश का दरवाज़ा खोलती है। यहाँ अना, हसद, बदगमानी और बैरूनी मदाखलतें अपना किरदार अदा करती हैं। मुमकिन है मर्द किरदार अपनी ज़िद की वजह से औरत के जज्बात को नज़रअंदाज करे। मुमकिन है औरत किरदार मुसलसल बर्दाश्त करती रहे मगर अंदर से टूटती जाए। यहाँ से कहानी एक जज्बाती गहराई इख्तियार करती है। नाज़रीन देखते हैं कि मोहब्बत के दावे करना आसान था मगर निभाना मुश्किल है। उसी दौरान किसी तीसरे किरदार की आमद भी कहानी को पेचीदा बना सकती है। ये किरदार साबिका मोहब्बत हो सकता है, कोई रिश्तेदार जो हसद रखता हो, या कोई ऐसा शख्स जो दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करे। इस मरहले पर कहानी में शिद्दत बढ़ती है। इल्ज़ाम तराशी, खामोशी, आंसू और दूरियां सब कुछ शामिल हो जाता है। एक अहम पहलू ये हो सकता है कि औरत किरदार अपनी खौददारी का मुज़ाहिरा करे। वो मुसलसल बर्दाश्त करने के बजाय एक हद के बाद फ़ैसला ले। शायद वो घर छोड़ दे, शायद वो अलहदगी का मुतालबा करे, या शायद वो अपनी ज़ात को तरजीह देने का फ़ैसला करे। यही वो लम्हा होता है जब मर्द किरदार को अपनी गलतियों का एहसास होता है, मगर अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी के इस हिस्से में नाज़रीन की हमदर्दियाँ बदलती रहती हैं। कभी वो मर्द के साथ होते हैं, कभी औरत के साथ। यही अच्छे ड्रामे की अलामत होती है कि कोई किरदार मुकम्मल तौर पर मनफी या मुस्बत नहीं होता, बल्कि हर शख्स अपनी कमज़ोरियों और खूबियों के साथ दिखाया जाता है। अगर हम मुमकिना अंजाम की बात करें तो दो रास्ते हो सकते हैं। या तो दोनों अपनी गलतियों से सीखकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, या फिर कहानी एक हकीकत पसंदाना मोड़ लेकर ये दिखाती है कि हर मोहब्बत का अंजाम साथ नहीं होता। अगर दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया तो ये ड्रामा आम रोमानवी ड्रामों से मुख्तलिफ हो सकता है। हमराही की कहानी अगर इस तरतीब से आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं रहेगी, बल्कि इंसानी अना, कुर्बानी, खौददारी और ताल्लुक़ की असल तारीफ़ की गहरी अक्कासी बन सकती है। असल सवाल यही है कि क्या साथ निभाने के लिए मोहब्बत काफ़ी होती है या एतिमाद और एहतराम इससे ज़्यादा ज़रूरी हैं।
ये था हिस्सा दोम जहां हमने मुमकिना कहानी को इब्तिदा से अंजाम तक मरहलावार समझने की कोशिश की। अगले हिस्से में हम किरदारों की नफ्सियाती गहराई, उनकी अंदरूनी कशमकश और इस ड्रामे के समाजी पैगाम का तफसीली तज्ज़िया करेंगे। अब हम गुफ्तगू को एक और गहराई की तरफ ले जाते हैं और ड्रामा हराही के किरदारों की नफ्सियाती परतों और उनकी अंदरूनी कशमकश का तफसीली जायज़ा लेते हैं। किसी भी संजीदा रोमानवी कहानी की असल ताकत इसके वाक़यात में नहीं बल्कि उसके किरदारों के अंदर चलने वाली खामोश जंग में होती है। बज़ाहिर जो कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सिर्फ नतीजा होता है, असल कहानी उन फैसलों की होती है जो किरदार अपने दिल और दिमाग के दरमियान करते हैं। सबसे पहले मर्द किरदार को समझना ज़रूरी है। अगर इस किरदार को रिवायती अंदाज में पेश किया गया तो वो एक मजबूत, खुद मुख्तार और फैसलाकुन शख्सियत होगा। मगर इस मजबूती के पीछे अक्सर एक कमज़ोरी छपी होती है। मुमकिन है वो जज्बात का इजहार करने से घबराता हो या माजी की किसी नाकामी ने उसे सख्त बना दिया हो। ऐसे किरदार अक्सर मोहब्बत करते तो ही मगर उसे कमज़ोरी समझते हैं। वो ताल्लुक़ में बरतरी चाहते हैं, इन्हें कंट्रोल की आदत होती है और जब हालात उनके काबू से बाहर होने लगते हैं तो वो गुस्से या खामोशी का सहारा लेते हैं। यही खामोशी बाद में फासले पैदा करती है। दूसरी तरफ औरत किरदार की नफ्सियात मुख्तलिफ हो सकती है। वो जज्बात को समझती है, इन्हें महसूस करती है और ताल्लुक़ को कायम रखने की कोशिश करती है। मगर एक हद के बाद इसके अंदर भी सवाल पैदा होते हैं। क्या कुर्बानी सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है? क्या मोहब्बत में खौददारी की कोई जगह नहीं? यही वो लम्हे होते हैं जब इसका किरदार अंदर से बदलने लगता है। इब्तिदा में वो बर्दाश्त को मोहब्बत समझती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि बर्दाश्त और ख़ुद फरामोशी में फ़र्क होता है। अगर इस तब्दीली को बारीकी से दिखाया गया तो ये ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू बन सकता है। एक दिलचस्प पहलू ये भी हो सकता है कि दोनों किरदार दरअसल एक दूसरे की तकमील ही मगर अपनी अना की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मर्द किरदार को जज्बाती इजहार सीखना होता है और औरत किरदार को अपनी आवाज़ बुलंद करना। ये अंदरूनी तब्दीलियां अचानक नहीं होती बल्कि हालात के दबाव से पैदा होती हैं। किसी बड़ी गलत फहमी, किसी हादसे या किसी अलहदगी के बाद इंसान खुद को आईने में देखने पर मजबूर होता है। अगर हमारा ही इस नफ्सियाती सफ़र को हकीकत के करीब रखता है तो नाज़रीन किरदारों से गहरा ताल्लुक़ महसूस करेंगे। इस कहानी में समाजी दबाव भी एक नफ्सियाती अंसर के तौर पर मौजूद हो सकता है। ख़ानदान की तवक्कुआत, मुआशरे की राय और इज़्ज़त का तसव्वुर अक्सर अफराद को अपने असल जज्बात दबाने पर मजबूर कर देता है। मर्द किरदार शायद इस खौफ में मुब्तला हो कि कमज़ोरी ज़ाहिर करना इसकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाएगा। औरत किरदार शायद इस खौफ में रहे कि अगर वो आवाज़ उठाएगी तो उसे बागी या नाशुक्री करार दिया जाएगा। यही खौफ उनके फैसलों को मुतासिर करता है और कहानी को पेचीदा बनाता है। एक और अहम पहलू एतिमाद का है। ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतिमाद होता है। अगर किसी मरहले पर बदगुमानी पैदा हो जाए तो वो जहर की तरह पूरे रिश्ते में फैल जाती है। हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स जानबूझकर गलत फहमियां पैदा करे या किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। यहाँ असल इम्तिहान ये होता है कि क्या दोनों एक दूसरे पर यकीन रखते हैं या दूसरों की बातों पर। अगर मर्द किरदार जल्दी बदगुमान हो जाता है तो ये इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। अगर औरत किरदार खामोश रहकर सफाई देने से इनकार करती है तो ये इसकी खौददारी का इजहार हो सकता है। कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा वो हो सकता है जब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो। एहसास हमेशा अचानक नहीं आता बल्कि तन्हाई के लम्हात में जन्म लेता है। जब इंसान अपने फैसलों के नताइज देखता है, जब उसे एहसास होता है कि इसकी जिद ने उसे किया खो दिया, तब वो बदलने पर आमादा होता है। अगर हमारा ही इस तब्दीली को सुस्त रफ्तारी से और हकीकत पसंदाना अंदाज में दिखाता है तो ये नाज़रीन के दिलों पर गहरा असर छोड़ सकता है। इस पूरे नफ्सियाती सफ़र में ये सवाल बार बार सामने आता है कि क्या मोहब्बत अना से बड़ी हो सकती है? क्या दो मजबूत शख्सियत एक दूसरे के साथ चल सकती हैं या किसी एक को झुकना पड़ता है? अगर ड्रामा इस सवाल का जवाब सादा अंदाज में देता है तो शायद वो आम सा लगे, मगर अगर ये दिखाता है कि दोनों को बदलना पड़ता है, दोनों को सीखना पड़ता है, तो कहानी ज़्यादा मुतवाज़िन और पुख्ता महसूस होगी। हमराही की असल ताकत इस बात में हो सकती है कि ये मोहब्बत को ख्वाब नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के तौर पर पेश करे। रिश्ता सिर्फ दिल की ख्वाहिश नहीं बल्कि शऊरी फैसला भी होता है। जब दो अफराद एक दूसरे का हम सफ़र बनते हैं तो इन्हें सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि गलतियों में भी साथ देना होता है। मगर साथ देने का मतलब अपनी शनाख्त खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की शनाख्त का एहतराम करना है।
ये था हिस्सा सोम जहां हमने किरदारों की नफ्सियात, उनकी दाखिली कशमकश और ताल्लुक़ के बुनियादी अनासिर का गहराई से जायज़ा लिया। अगले हिस्से में हम इस ड्रामे के समाजी पैगाम, औरत और मर्द के किरदार की नुमाइंदगी और उसके मुमकिना सकाफ़ती असरात पर तफसील से बात करेंगे। अब हम गुफ्तगू को एक वसीतर दायरे में ले आते हैं और ड्रामा हराही के समाजी पहलुओं, सकाफ़ती नुमाइंदगी और मुमकिना पैगाम का तफसीली जायज़ा लेते हैं। किसी भी ड्रामे की असल अहमियत सिर्फ उसकी कहानी या अदाकारी तक महदूद नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो मुआशरे को क्या दिखाता है और नाज़रीन को किस सोच की तरफ माइल करता है। पाकिस्तानी मुआशरा ख़ानदानी निज़ाम पर कायम है, जहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का ताल्लुक़ समझी जाती है। ऐसे माहौल में मोहब्बत अक्सर ज़ाती जज्बात से बढ़कर समाजी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हमराही अगर उसी तनाजुर में आगे बढ़ता है तो ये सवाल उठा सकता है कि क्या शादी के बाद औरत की पहचान सिर्फ बीवी के किरदार तक महदूद रह जाती है या वो अपनी इनफिरादी शनाख्त बरकरार रख सकती है। उसी तरह मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो मजबूत हो, जज्बात ज़ाहिर ना करे और हर सूरत हाल पर काबू रखे। ये समाजी दबाव मर्द को भी अंदर से थका देता है। अगर ड्रामा उन दोनों पहलुओं को मुतवाज़िन अंदाज में पेश करे तो ये एक अहम समाजी मकालमा पैदा कर सकता है। एक और अहम मौजू एतिमाद और इज़्ज़त का है। हमारे मुआशरे में अक्सर रिश्ते ज़ाहिरी इज़्ज़त बचाने के लिए निभाए जाते हैं, चाहे अंदर से वो खाली हो चुके हों। अगर हमराही इस हकीकत को दिखाता है कि ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ समाजी कबूलियत नहीं बल्कि बाहमी एहतराम होना चाहिए, तो ये एक मुस्बत पैगाम होगा। इज़्ज़त सिर्फ ख़ानदान की नहीं बल्कि फ़र्द की भी होती है। अगर औरत किरदार अपनी इज़्ज़त और ख़ुददारी के लिए खड़ी होती है तो ये जदीद सोच की नुमाइंदगी हो सकती है, मगर अगर उसे खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर दिखाया जाए तो ये रिवायती बयानिए को तक़वियत देगा। ड्रामे में तफ़ाती फ़र्क भी अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर दोनों मरकज़ी किरदार मुख्तलिफ समाजी या मुआशी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हों तो उनके दरमियान कशमकश मज़ीद गहरी हो सकती है। दौलत और हैसियत अक्सर ताल्लुकात में बरतरी का एहसास पैदा करती है और यही एहसास रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। अगर मर्द किरदार दौलत या ताकत के बल पर फैसले मुसल्लित करता है तो ये ताकत के अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करेगा। अगर औरत किरदार इस अदम तवाज़ुन को चैलेंज करती है तो ये कहानी को जदीद रंग दे सकता है। सकाफ़ती तौर पर पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से क़ुरबानी और सब्र को औरत की सबसे बड़ी खूबी के तौर पर पेश करते आए हैं। सवाल ये है कि क्या हमराही भी उसी रिवायत को दोहराता है या इसमें कोई नई जिहत शामिल करता है। अगर औरत सिर्फ बर्दाश्त करती रहती है और आखिर में सब कुछ मुआफ़ कर देती है तो ये एक मानूस अंजाम होगा। मगर अगर वो अपनी शराइत पर रिश्ता कबूल करती है या अपनी ज़िंदगी का अलग रास्ता इख्तियार करती है तो ये एक जुर्रतमंदाना मोड़ होगा। उसी तरह मर्द किरदार की तब्दीली भी अहम है। क्या वो अपनी अना को छोड़कर माज़रत करना सीखता है? क्या वो ये तस्लीम करता है कि मोहब्बत में बराबरी ज़रूरी है? अगर हम तो ये एक मुस्बत मिसाल कायम कर सकता है कि मजबूत होना और नरम होना एक दूसरे की ज़िद नहीं बल्कि तकमील हैं। मुआशरे में मर्दांगी का तसव्वुर अक्सर जज्बाती कमज़ोरी को रद्द करता है, मगर अगर ड्रामा ये दिखाए कि असल ताकत इतिराफ़ और इस्लाह में है तो ये एक सेहतमंद पैगाम होगा। हमराही का मुमकिना सकाफ़ती असर इस बात पर भी मुनहसर है कि इसे किस अंदाज में पेश किया जाता है। अगर कहानी में सिर्फ आंसू और गलत फहमियाँ होंगी तो ये वक्ती जज्बात पैदा करेगा, मगर अगर इसमें सोचने पर मजबूर करने वाले मकालमे और हकीकत से करीब मनाजिर होंगे तो ये देरपा असर छोड़ सकता है। ड्रामा नाज़रीन को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हम अपने ताल्लुकात में वाकई एक दूसरे के हमराही हैं या सिर्फ साथ चलने का दिखावा करते हैं। ये भी मुमकिन है कि ड्रामा ये पैगाम दे कि ताल्लुकात में माफ़ी अहम है मगर खुदी की कीमत पर नहीं। साथ निभाना ज़रूरी है मगर अपनी शनाख्त खोकर नहीं। यही तवाज़ुन अगर खूबसूरती से पेश किया जाए तो हमराही महज एक रोमानवी कहानी नहीं बल्कि एक समाजी आईना बन सकता है। ये था हिस्सा चहारम जहां हमने ड्रामे के समाजी और सकाफ़ती पहलुओं का तफसीली तज्ज़िया किया। अगले हिस्से में हम इसकी तकनीकी जहात, अदाकारी की मुमकिना कारकर्दगी, मौसीकी और मजमूई पेशकश के मेयार पर गहरी नज़र डालेंगे ताकि ये समझा जा सके कि ये ड्रामा अमली तौर पर कितना मजबूत साबित हो सकता है। अब हम गुफ्तगू को ड्रामा हराही के तकनीकी और फ़नी पहलुओं की तरफ ले आते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी की तासीर सिर्फ उसके मौजू पर नहीं बल्कि उस अंदाज़े पेशकश पर भी मुनहसर होती है। एक मजबूत स्क्रिप्ट अगर कमज़ोर हिदायतकारी या सतही अदाकारी का शिकार हो जाए तो इसका असर कम हो जाता है, जबकि एक सादा कहानी भी आला फ़नी मेयार के साथ पेश की जाए तो यादगार बन सकती है। सबसे पहले हिदायतकारी की बात की जाए तो बाबर जावेद का नाम इस बात की ज़मानत समझा जाता है कि ड्रामा बसरी तौर पर मेयारी होगा।
उनके काम में कैमरा एंगल्स, रोशनी का इस्तेमाल और जज्बाती मनाजिर को सुस्त रफ्तार शाटस में पेश करना एक नुमायां खसूसियत है। अगर हमराही में भी उसी तर्ज को अपनाया गया तो नाज़रीन को हर जज्बाती लम्हा महसूस करने का मौका मिलेगा। करीबी शाटस के ज़रिए आँखों के तासुरात और ख़ामोशी की शिद्दत दिखाना रोमानवी ड्रामों की जान होता है और यही अंसर इस कहानी को गहराई दे सकता है। अब अदाकारी की तरफ आएँ तो डेनिश तैमूर का अंदाज़ हमेशा शिद्दत लिए होता है। वो जज्बाती मनाजिर में आवाज़ की मजबूती और चेहरे के तासुरात से किरदार को ताकत देते हैं। अगर उनका किरदार अंदरूनी कशमकश का शिकार है तो उनकी आँखों की संजीदगी और मकालमे की अदायगी उसे हकीकत के करीब ला सकती है। अलबत्ता एक ख़तरा ये भी होता है कि अगर किरदार हद से ज़्यादा सख्त या यकसम मिजाज दिखाया गया तो वो एक रंग महसूस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि उनके किरदार में नरमी और कमज़ोरी के लम्हात भी दिखाए जाएं ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। दूसरी जानिब हिबा बुकारी की अदाकारी में ठहराव और वक़ार नुमायां होता है। वो जज्बात को चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से अदा करने की सलाहियत रखती हैं। अगर उनके किरदार में सब्र, तकलीफ़ और अंदरूनी ताकत के पहलू शामिल हों तो वो इन्हीं बारीकी से पेश कर सकती हैं। ख़ास तौर पर आंसुओं के बग़ैर दर्द को ज़ाहिर करना एक फ़न है और यही खूबी किरदार को हकीकी बनाती है। अगर स्क्रिप्ट ने इन्हीं मजबूत मकालमे और फैसलाकुन मनाजिर दिए तो वो इस ड्रामे की असल ताकत बन सकती हैं। मौसीकी भी किसी रोमानवी ड्रामे का अहम जुज़्व होती है। एक मुअस्सर इब्तिदाई नग़मा या पस मंज़र की धुन कहानी के जज्बात को कई गुना बढ़ा देती है। अगर हमराही का मौसीक़ियती अंदाज़ नरम, उदास और गहराई लिए हो तो वो हर मंज़र की तासीर में इजाफ़ा करेगा। अक्सर नाज़रीन ड्रामे को उसकी कहानी से ज़्यादा इसके गीत से याद रखते हैं। इसलिए अगर इसका उन्वानी नग़मा दिल को छू लेने वाला हुआ तो ये ड्रामा मकबूलियत की दौड़ में आगे निकल सकता है। मनाजिर की तरतीब और सेट डिज़ाइन भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर कहानी शहरी पस मंज़र में है तो जदीद और नफीस माहौल दिखाया जाएगा, जबकि अगर ख़ानदानी रिवायत पर जोर है तो घरेलू मनाजिर में सादगी और गर्मजोशी नज़र आएगी। रंगों का इंतखाब भी जज्बात की अक्कासी करता है। नरम रोशनी और हल्के रंग मोहब्बत और उम्मीद की अलामत होते हैं, जबकि गहरे और मध्यम रंग तनाज़ो और उदासी को ज़ाहिर करते हैं। अगर हिदायतकार ने उन अनासिर को मुतवाज़िन रखा तो ड्रामा बसरी तौर पर मुतासिरकिन हो सकता है। एक और अहम पहलू मकालमा निगारी है। चूंकि कहानी को कलमबंद किया है ज़ंजबील आसिम शाह ने, इसलिए तवक्को की जा सकती है कि मकालमे महज रस्मी जुमले नहीं बल्कि किरदारों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। अच्छा मकालमा वो होता है जो सुनने वाले के दिल में उतर जाए और उसे सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हमराही में ऐसे जुमले शामिल हों जो मोहब्बत, खुदी और रफ़ाक़त की असल तारीफ़ बयान करें तो ये ड्रामा देर तक याद रखा जाएगा। रफ्तार भी एक अहम अंसर है। अगर कहानी बहुत सुस्त चले तो नाज़रीन उकता सकते हैं और अगर बहुत तेज़ हो तो जज्बात की गहराई कम हो सकती है। बेहतरीन ड्रामा वो होता है जो हर मोड़ पर तजस्सुस बरकरार रखे मगर जल्दबाजी ना करे। हमराही की कामयाबी उसी तवाज़ुन पर मुनहसर होगी कि क्या ये हर किस्म में नया सवाल पैदा करता है या नहीं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकनीकी और फ़नी एतबार से ये ड्रामा एक मजबूत पैकेज बनने की सलाहियत रखता है। अदाकारों की मकबूलियत, हिदायतकार का तजुर्बा और लिखारी की हसासियत सब मिलकर उसे एक संजीदा रोमानवी पेशकश बना सकते हैं। ताहम असल फैसला नाज़रीन के रद्द अमल पर होगा कि आया ये कहानी इन्हीं जज्बाती तौर पर जोड़ पाती है या नहीं। ये था हिस्सा पंजुम जहां हमने अदाकारी, हिदायतकारी, मौसीकी और तकनीकी मेयर का तफसीली जायज़ा लिया। अगले और आखिरी हिस्से में हम मुकम्मल तज्ज़िये को समेटते हुए हतमी राय, मुमकिना कामयाबी, तनकीदी पहलू और इस ड्रामे की मजमूई दर्जाबंदी पर बात करेंगे। अब हम इस तफसीली जायज़े के आखिरी मरहले में दाखिल होते हैं और ड्रामा हराही के मजमूई असर, मुमकिना कामयाबी, तनकीदी पहलुओं और हतमी राय को समेटने की कोशिश करते हैं। किसी भी ड्रामे का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब नाज़रीन उससे जज्बाती तौर पर जुड़ते हैं या नहीं। मकबूल अदाकार, मजबूत हिदायतकारी और मुअस्सर मौसीकी अपनी जगह अहम हैं, मगर अगर कहानी दिल में उतरने में नाकाम रहे तो सब अनासिर बेअसर हो जाते हैं। हमराही की सबसे बड़ी ताकत इसका मरकज़ी ख़याल हो सकता है, यानी रफ़ाक़त का तसव्वुर। पाकिस्तानी ड्रामों में मोहब्बत को अक्सर शिद्दत, कुर्बानी और गलत फ़हमियों के ज़ाविये से दिखाया जाता है, मगर रफ़ाक़त एक मुख्तलिफ पहलू है। रफ़ाक़त का मतलब है बराबरी, एहतिराम और साथ चलने का शूर। अगर ड्रामा इस फ़लसफ़े को मजबूती से पेश करता है तो ये आम रोमानवी कहानियों से मुख्तलिफ हो सकता है। मगर अगर ये महज रिवायती तनाज़ात तक महदूद रह गया तो इसकी शनाख्त भी आम ड्रामों जैसी हो जाएगी। एक अहम सवाल ये है कि क्या कहानी में नयापन होगा।
नाज़रीन अब पहले की तरह सादा और अंदाज़ा लगाने वाली कहानियों से मुतमईन नहीं होते। अगर हर मोड़ पहले से मुतवक्के हो, अगर गलत फहमियाँ मामूली वजूहत पर पैदा हों और आसानी से हल हो जाएं, तो ड्रामा वक्ती दिलचस्पी तो पैदा करेगा मगर यादगार नहीं बन पाएगा। इसके बरअक्स अगर किरदारों के फैसले हकीकत से करीब हों, अगर अंजाम महज खुशकिन नहीं बल्कि मानी ख़ेज़ हो, तो ये ड्रामा एक मजबूत तासुर छोड़ सकता है। तनकीदी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सबसे बड़ा ख़तरा तकरार का है। अगर मर्द किरदार की सख्ती और औरत किरदार की खामोशी को बार बार एक ही अंदाज में दिखाया गया तो कहानी में जमूद आ सकता है। उसी तरह अगर हर मसले का हल आखिरी चंद अक़सात में अचानक पेश कर दिया गया तो वो गैर फितरी महसूस होगा। अच्छा ड्रामा वो होता है जो हर तब्दीली को वक्त दे, हर एहसास को तदरीजी अंदाज में बढ़ाए और हर मोड़ को मंतकी बुनियाद फराहम करे। मकबूलियत के एतबार से देखा जाए तो इस ड्रामे के पास तमाम अनासिर मौजूद हैं। मरकज़ी जोड़ी की शोहरत, चैनल की पहुंच और जज्बाती मौजू उसे रेटिंग की दौड़ में आगे रख सकते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हर मंजर, हर मकालमा और हर जज्बाती लम्हा वायरल होने की सलाहियत रखता है। अगर किसी क़िस्त में ऐसा मंजर आ गया जो नाज़रीन के दिल को छू ले तो वही मंजर ड्रामे की शनाख्त बन सकता है। ताहम कामयाबी का असल मेयार ये होगा कि क्या ये ड्रामा वक्त गुजरने के बाद भी याद रखा जाएगा। क्या नाज़रीन उसे सिर्फ एक और रोमानवी कहानी समझकर भुला देंगे या उसे एक ऐसी पेशकश मानेंगे जिसने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। अगर हमराही ने ये सवाल उठाया कि मोहब्बत में अना की कितनी गुंजाइश है और क्या बराबरी के बगैर ताल्लुक़ मुकम्मल हो सकता है, तो उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि हमराही एक ऐसा ड्रामा बनने की सलाहियत रखता है जो जज्बात, रफ़ाक़त और समाजी हकीकत के दरमियान तवाज़ुन कायम करे। इस की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि आया ये अपने मरकज़ी ख़याल पर कायम रहता है या रिवायती सांचों में ढल जाता है। अगर किरदार अपनी गलतियों से सीखते हैं, अगर ताल्लुक़ बराबरी की बुनियाद पर उस्तवार होता है और अगर अंजाम महज रस्मी नहीं बल्कि मानी ख़ेज़ होता है, तो ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक मजबूत इजाफ़ा साबित हो सकता है। यूँ हमने हमराही के पस मंज़र, कहानी, किरदारों की नफ्सियात, समाजी पहलुओं, फ़नी मेयार और मजमूई असर का तफसीली जायज़ा लिया। अब फैसला नाज़रीन के हाथ में है कि वो इस कहानी को किस नज़र से देखते हैं। क्या ये वाकई रफ़ाक़त की सच्ची तस्वीर पेश करेगा या महज एक और जज्बाती दास्तान साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जबकि हम ड्रामा हराही के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, इस आखिरी इजाफी हिस्से में हम एक गहरे और तनकीदी ज़ाविये से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रामा तवील मुद्दती तौर पर किस दर्जे का असर छोड़ सकता है और इसकी असल आजमाइश कहाँ होगी। किसी भी रोमानवी कहानी की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि वो जज्बात को दोहराती रहती है मगर इन्हें आगे नहीं बढ़ाती। अगर हमराही सिर्फ आंसू, नाराज़गी और माफ़ी के गर्द घूमता रहा तो ये वक्ती दिलचस्पी तो पैदा करेगा मगर फ़िक्री असर नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर ये ड्रामा रिश्ते के इर्तिक़ा को दिखाए, यानी इब्तिदा की कशिश से लेकर एतिमाद की तामीर और फिर टूटने और दोबारा जड़ने के मरहले तक एक हकीकी सफ़र पेश करे, तो ये एक संजीदा तख्लीक़ के तौर पर सामने आ सकता है। ये भी देखना होगा कि कहानी औरत और मर्द दोनों को किस दर्जे की खुदमुख्तारी देती है। अगर मर्द किरदार की तब्दीली सिर्फ उस वक्त आए जब वो सब कुछ खो दे तो ये एक रिवायती अंजाम होगा, मगर अगर वो वक्त पर अपनी गलती तस्लीम करे और बराबरी को कबूल करे तो ये एक मुस्बत और जदीद सोच की नुमाइंदगी होगी। उसी तरह अगर औरत किरदार अपनी खुदी बरकरार रखते हुए ताल्लुक़ को बचाने की कोशिश करती है तो ये एक मुतवाज़िन पैगाम होगा, मगर अगर उसे सिर्फ बर्दाश्त की अलामत बनाकर पेश किया गया तो ये पुराना बयानिया दोहराया जाएगा। एक और पहलू जिस पर गौर ज़रूरी है वो है ड्रामे की रफ्तार और तवालत। अक्सर पाकिस्तानी ड्रामे मकबूलियत की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर लंबे कर दिए जाते हैं, जिससे कहानी की शिद्दत कम हो जाती है। अगर हमराही अपनी कहानी को मुनासिब तादाद में अक़सात में मुकम्मल करता है और गैर ज़रूरी मोड़ शामिल नहीं करता तो ये इसकी मजबूती होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कम मगर मुअस्सर अक़सात ज़्यादा देर पा असर छोड़ती हैं। नाज़रीन की नफ्सियात भी बदल चुकी है। अब सिर्फ खूबसूरत मनाज़िर और जज्बाती मकालमे काफ़ी नहीं होते। लोग हकीकत से करीब कहानियाँ देखना चाहते हैं जहाँ मसाइल का हल भी हकीकत पसंदाना हो। अगर हमराही ये दिखाता है कि रिश्ता बचाने के लिए दोनों को अपनी अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है तो ये एक काबिल कद्र पेशकश होगी। लेकिन अगर तमाम जिम्मेदारी एक ही किरदार पर डाल दी गई तो ये गैर मुतवाज़िन महसूस होगा। इस ड्रामे की कामयाबी का एक पहलू ये भी होगा कि आया ये सोशल मीडिया के दौर में बहस पैदा करता है या नहीं।
آج کل ہر قسط کے بعد ناظرین اپنی رائے دیتے ہیں، کرداروں کا تجزیہ کرتے ہیں اور کہانی کے رخ پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر ہمراہی کے کردار اتنے مضبوط ہوئے کہ لوگ ان پر گفتگو کریں، ان کے فیصلوں پر اختلاف کریں اور انہیں اپنی زندگی سے جوڑیں، تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمراہی صرف ایک رومانوی کہانی نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ کہ کیا ہم واقعی اپنے تعلقات میں ایک دوسرے کے ہمراہی بنتے ہیں یا صرف حالات کے تحت ساتھ چلتے ہیں؟ کیا محبت میں انا کی گنجائش ہے؟ کیا خودداری اور قربانی ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ اور کیا رشتہ صرف جذبات سے قائم رہتا ہے یا شعوری فیصلوں سے مضبوط ہوتا ہے؟ اگر یہ ڈرامہ ان سوالوں کا دیانت داری سے سامنا کرتا ہے تو یہ محض ایک مقبول سیریل نہیں بلکہ ایک بامعنی تخلیق بن سکتا ہے، اور اگر اس نے آسان راستہ اختیار کیا تو یہ بھیڑ میں شامل ہو کر رہ جائے گا۔ اب سب کی نظریں اس بات پر رہیں کہ ہمراہی اپنے عنوان کے مطابق واقعی ہم سفر بن پاتا ہے یا اور تلخ بھی ممکن ہے دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھ لیں۔ یہاں سے انا کا پہلا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ناظرین دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں کیونکہ اختلاف ہی کہانی کو حرکت دیتا ہے۔ اگر سب کچھ آسان ہو تو ڈرامہ بے جان ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ جہاں حالات دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ یہ قربت اتفاق سے بھی ہو سکتی ہے اور مجبوری سے بھی۔ شاید خاندانی تعلق، شاید کاروباری وابستگی، یا شاید کسی مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یہاں سے جذبات کی نرم لہریں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں مگر انا اب بھی درمیان میں حائل رہتی ہے۔ مرد کردار شاید اپنے جذبات کو تسلیم کرنے سے انکار کرے، جبکہ عورت کردار اپنی خودی کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اس مرحلے پر کہانی میں خاندان کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں رشتے صرف دو افراد کے درمیان نہیں ہوتے بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ممکن ہے لڑکے کا خاندان کسی اور رشتے کا خواہاں ہو، یا لڑکی کا خاندان سماجی حیثیت کے فرق کی وجہ سے ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ یہی سماجی دباؤ کہانی میں اصل کشمکش پیدا کرتا ہے۔ محبت صرف دو دلوں کا معاملہ نہیں رہتی بلکہ عزت، روایت اور توقعات کا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اگلا مرحلہ عموماً فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یا تو دونوں کردار ایک دوسرے کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا حالات انہیں ایک رشتے میں باندھ دیتے ہیں۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو کہانی کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے کیونکہ شادی کے بعد اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اگر شادی نہیں ہوتی اور صرف تعلق قائم رہتا ہے تو بھی غلط فہمیاں اور فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد کی زندگی اکثر ڈراموں میں ایک نئی آزمائش کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہاں انا، حسد، بدگمانی اور بیرونی مداخلتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ممکن ہے مرد کردار اپنی ضد کی وجہ سے عورت کے جذبات کو نظر انداز کرے۔ ممکن ہے عورت کردار مسلسل برداشت کرتی رہے مگر اندر سے ٹوٹتی جائے۔ یہاں سے کہانی ایک جذباتی گہرائی اختیار کرتی ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ محبت کے دعوے کرنا آسان تھا مگر نبھانا مشکل ہے۔ اسی دوران کسی تیسرے کردار کی آمد بھی کہانی کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ یہ کردار سابقہ محبت ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار جو حسد رکھتا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے۔ اس مرحلے پر کہانی میں شدت بڑھتی ہے۔ الزام تراشی، خاموشی، آنسو اور دورین سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اہم پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کردار اپنی خودداری کا مظاہرہ کرے۔ وہ مسلسل برداشت کرنے کے بجائے ایک حد کے بعد فیصلہ لے۔ شاید وہ گھر چھوڑ دے، شاید وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے، یا شاید وہ اپنی ذات کو ترجیح دینے کا فیصلہ کرے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مرد کردار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، مگر اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہانی کے اس حصے میں ناظرین کی ہمدردیاں بدلتی رہتی ہیں، کبھی وہ مرد کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی عورت کے ساتھ۔ یہی اچھے ڈرامے کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی کردار مکمل طور پر منفی یا مثبت نہیں ہوتا بلکہ ہر شخص اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم ممکنہ انجام کی بات کریں تو دو راستے ہو سکتے ہیں۔ یا تو دونوں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں، یا پھر کہانی ایک حقیقت پسندانہ موڑ لے کر یہ دکھاتی ہے کہ ہر محبت کا انجام ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کیا گیا تو یہ ڈرامہ عام رومانوی ڈراموں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمراہی کی کہانی اگر اس ترتیب سے آگے بڑھتی ہے تو یہ صرف ایک محبت کی داستان نہیں رہے گی بلکہ انسانی انا، قربانی، خودداری اور تعلق کی اصل تعریف کی گہری عکاسی بن سکتی ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ کیا ساتھ نبھانے کے لیے محبت کافی ہوتی ہے یا اعتماد اور احترام اس سے زیادہ ضروری ہیں؟ یہ تھا حصہ دوم جہاں ہم نے ممکنہ کہانی کو ابتدا سے انجام تک مرحلہ وار سمجھنے کی کوشش کی۔
अगले हिस्से में हम किरदारों की नफ्सियाती गहराई, उनकी अंदरूनी कशमकश और इस ड्रामे के समाजी पैगाम का तफसीली तज्ज़िया करेंगे। अब हम गुफ्तगू को एक और गहराई की तरफ ले जाते हैं और ड्रामा हराही के किरदारों की नफ्सियाती परतों और उनकी अंदरूनी कशमकश का तफसीली जायज़ा लेते हैं। किसी भी संजीदा रोमानवी कहानी की असल ताकत इसके वाक़यात में नहीं बल्कि उसके किरदारों के अंदर चलने वाली खामोश जंग में होती है। बज़ाहिर जो कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सिर्फ नतीजा होता है, असल कहानी उन फैसलों की होती है जो किरदार अपने दिल और दिमाग के दरमियान करते हैं। सबसे पहले मर्द किरदार को समझना ज़रूरी है। अगर इस किरदार को रिवायती अंदाज में पेश किया गया तो वो एक मजबूत, खुद मुख्तार और फैसलाकिन शख्सियत होगा। मगर इस मजबूती के पीछे अक्सर एक कमज़ोरी छपी होती है। मुमकिन है वो जज्बात का इजहार करने से घबराता हो या माजी की किसी नाकामी ने उसे सख्त बना दिया हो। ऐसे किरदार अक्सर मोहब्बत करते तो ही मगर उसे कमज़ोरी समझते हैं। वो ताल्लुक़ में बरतरी चाहते हैं, इन्हें कंट्रोल की आदत होती है और जब हालात उनके काबू से बाहर होने लगते हैं तो वो गुस्से या खामोशी का सहारा लेते हैं। यही खामोशी बाद में फासले पैदा करती है। दूसरी तरफ औरत किरदार की नफ्सियात मुख्तलिफ हो सकती है। वो जज्बात को समझती है, इन्हें महसूस करती है और ताल्लुक़ को कायम रखने की कोशिश करती है। मगर एक हद के बाद इसके अंदर भी सवाल पैदा होते हैं। क्या कुर्बानी सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है? क्या मोहब्बत में खौदारी की कोई जगह नहीं? यही वो लम्हे होते हैं जब इसका किरदार अंदर से बदलने लगता है। इब्तिदा में वो बर्दाश्त को मोहब्बत समझती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास होता है कि बर्दाश्त और ख़ुद फरामोशी में फ़र्क होता है। अगर इस तब्दीली को बारीकी से दिखाया गया तो ये ड्रामे का सबसे मजबूत पहलू बन सकता है। एक दिलचस्प पहलू ये भी हो सकता है कि दोनों किरदार दरअसल एक दूसरे की तकमील ही मगर अपनी अना की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मर्द किरदार को जज्बाती इजहार सीखना होता है और औरत किरदार को अपनी आवाज़ बुलंद करना। ये अंदरूनी तब्दीलियां अचानक नहीं होती बल्कि हालात के दबाव से पैदा होती हैं। किसी बड़ी गलत फहमी, किसी हादसे या किसी अलहदगी के बाद इंसान खुद को आईने में देखने पर मजबूर होता है। अगर हमारा ही इस नफ्सियाती सफ़र को हकीकत के करीब रखता है तो नाज़रीन किरदारों से गहरा ताल्लुक़ महसूस करेंगे। इस कहानी में समाजी दबाव भी एक नफ्सियाती अंसर के तौर पर मौजूद हो सकता है। ख़ानदान की तवक्कुआत, मुआशरे की राय और इज़्ज़त का तसव्वुर अक्सर अफराद को अपने असल जज्बात दबाने पर मजबूर कर देता है। मर्द किरदार शायद इस खौफ में मुब्तला हो कि कमज़ोरी ज़ाहिर करना इसकी शख्सियत को नुकसान पहुंचाएगा। औरत किरदार शायद इस खौफ में रहे कि अगर वो आवाज़ उठाएगी तो उसे बागी या नाशुक्री करार दिया जाएगा। यही खौफ उनके फैसलों को मुतासिर करता है और कहानी को पेचीदा बनाता है। एक और अहम पहलू एतिमाद का है। ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतिमाद होता है। अगर किसी मरहले पर बदगुमानी पैदा हो जाए तो वो जहर की तरह पूरे रिश्ते में फैल जाती है। हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स जानबूझकर गलत फहमियां पैदा करे या किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। यहाँ असल इम्तिहान ये होता है कि क्या दोनों एक दूसरे पर यकीन रखते हैं या दूसरों की बातों पर। अगर मर्द किरदार जल्दी बदगुमान हो जाता है तो ये इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। अगर औरत किरदार खामोश रहकर सफाई देने से इनकार करती है तो ये इसकी खौदारी का इजहार हो सकता है। कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा वो हो सकता है जब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो। एहसास हमेशा अचानक नहीं आता बल्कि तन्हाई के लम्हात में जन्म लेता है। जब इंसान अपने फैसलों के नताइज देखता है, जब उसे एहसास होता है कि इसकी जिद ने उसे किया खो दिया, तब वो बदलने पर आमादा होता है। अगर हमारा ही इस तब्दीली को सुस्त रफ्तारी से और हकीकत पसंदाना अंदाज में दिखाता है तो ये नाज़रीन के दिलों पर गहरा असर छोड़ सकता है। इस पूरे नफ्सियाती सफ़र में ये सवाल बार बार सामने आता है कि क्या मोहब्बत अना से बड़ी हो सकती है? क्या दो मजबूत शख्सियत एक दूसरे के साथ चल सकती हैं या किसी एक को झुकना पड़ता है? अगर ड्रामा इस सवाल का जवाब सादा अंदाज में देता है तो शायद वो आम सा लगे, मगर अगर ये दिखाता है कि दोनों को बदलना पड़ता है, दोनों को सीखना पड़ता है, तो कहानी ज़्यादा मुतवाज़िन और पुख्ता महसूस होगी। हमराही की असल ताकत इस बात में हो सकती है कि ये मोहब्बत को ख्वाब नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के तौर पर पेश करे। रिश्ता सिर्फ दिल की ख्वाहिश नहीं बल्कि शऊरी फैसला भी होता है। जब दो अफराद एक दूसरे का हम सफ़र बनते हैं तो इन्हें सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि गलतियों में भी साथ देना होता है। मगर साथ देने का मतलब अपनी शनाख्त खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की शनाख्त का एहतराम करना है। ये था हिस्सा सोम जहां हमने किरदारों की नफ्सियात, उनकी दाखिली कशमकश और ताल्लुक़ के बुनियादी अनासिर का गहराई से जायज़ा लिया।
अगले हिस्से में हम इस ड्रामे के समाजी पैगाम, औरत और मर्द के किरदार की नुमाइंदगी और उसके मुमकिना सकाफती असरात पर तफसील से बात करेंगे। अब हम गुफ्तगू को एक वसीतर दायरे में ले आते हैं और ड्रामा हराही के समाजी पहलुओं, सकाफती नुमाइंदगी और मुमकिना पैगाम का तफसीली जायज़ा लेते हैं। किसी भी ड्रामे की असल अहमियत सिर्फ उसकी कहानी या अदाकारी तक महदूद नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो मुआशरे को क्या दिखाता है और नाज़रीन को किस सोच की तरफ माइल करता है। पाकिस्तानी मुआशरा ख़ानदानी निज़ाम पर कायम है, जहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का ताल्लुक़ समझी जाती है। ऐसे माहौल में मोहब्बत अक्सर ज़ाती जज्बात से बढ़कर समाजी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हमराही अगर उसी तनाजुर में आगे बढ़ता है तो ये सवाल उठा सकता है कि क्या शादी के बाद औरत की पहचान सिर्फ बीवी के किरदार तक महदूद रह जाती है या वो अपनी इनफिरादी शनाख्त बरकरार रख सकती है। उसी तरह मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो मजबूत हो, जज्बात ज़ाहिर ना करे और हर सूरत हाल पर काबू रखे। ये समाजी दबाव मर्द को भी अंदर से थका देता है। अगर ड्रामा उन दोनों पहलुओं को मुतवाज़िन अंदाज में पेश करे तो ये एक अहम समाजी मकालमा पैदा कर सकता है। एक और अहम मौजू एतिमाद और इज़्ज़त का है। हमारे मुआशरे में अक्सर रिश्ते ज़ाहिरी इज़्ज़त बचाने के लिए निभाए जाते हैं, चाहे अंदर से वो खाली हो चुके हों। अगर हमराही इस हकीकत को दिखाता है कि ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ समाजी कबूलियत नहीं बल्कि बाहमी एहतिराम होना चाहिए, तो ये एक मुस्बत पैगाम होगा। इज़्ज़त सिर्फ ख़ानदान की नहीं बल्कि फ़र्द की भी होती है। अगर औरत किरदार अपनी इज़्ज़त और ख़ुददारी के लिए खड़ी होती है तो ये जदीद सोच की नुमाइंदगी हो सकती है, मगर अगर उसे खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर दिखाया जाए तो ये रिवायती बयानिए को तक़वियत देगा। ड्रामे में तबक़ाती फ़र्क भी अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर दोनों मरकज़ी किरदार मुख्तलिफ समाजी